रही है, बट हम कंटिन्यू करते हैं. So last time we were talking about the anatomy of the lung. So सबसे पहले first of all you have to see the trachea. उसमें हमने पढ़ा था कि the tracheal position should be right in the center of both lungs. It is slightly normally it is slightly to the right because of the presence of aortic arch. If you can see this bulge, this is aortic arch. So, but if it is too much towards one side, then it is called deviated, and we will see what are the conditions. So it appears as a radiolucent column because it has air within it. और हमने पढ़ा कि 3 डेंसिटी होती हैं. एयर जो बिल्कुल ही ब्लैक नजर आती है क्योंकि ये एब्जॉर्ब जो है एक्सेस को कम करती है. और डाउन टू द 6th और 6th वर्टिब्री हम देखते हैं राइट इन द सेंटर होती है. स्लाइटली टू द राइट भी मिल सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एओर्टिक बल्ज, बट बहुत ज्यादा जो है डेविएटेड नहीं होनी चाहिए. देयर आर पैथोलॉजीज that pull the trachea towards the affected side, and there are pathologies which push the trachea opposite to the affected side. So इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रैकिया जो है बिल्कुल जो स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में चल रहा होता है उसके एंटीरियरली. इसमें आप देखेंगे ब्लैक सा जो स्ट्रक्चर है हाइपर रेडियोल्यूसेंट, दिस इज ट्रैकिया कंटेनिंग एयर. सो इट हैज बीन शिफ्टेड और डेविएटेड टू द राइट साइड. नजर आ रहा है ना आप लोगों को? इसमें देखें कि ट्रैकिया इज बीइंग शिफ्टेड और डेविएटेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द patient. So then if there is a deviation like this, then it means there is some pathology. So we will study there are some diseases which pulls the trachea like atelectasis, lungs fibrosis and TB. इसमें भी देखें आप towards the left side push हो गया है, इसमें towards the right side, इसमें भी left right side पे है, और finally in this case this is towards the left side. इसमें आप क्या कहेंगे, शिफ्टेड है या सेंटर में है? What will be your answer? I shifted to left. Very good. In this case, the trachea is being shifted to the left. This is not in the center. So it is because of pneumothorax, means the cavity in the air in the pleural space. It is pushed to the left side of the patient. Carina का पढ़ा था हम लोगों ने कि where the trachea bifurcates into the right main bronchus and left main bronchus, the angle which is formed at this bifurcation is called carina, and its angle should be always be less than 90 degree. This is the portion of the carina. If it is more than 90 degree, then it is called splaying of carina या widening of carina. So in the first image, you can easily see that the angle between the right bronchus and the left bronchus is more than 90 degree obtuse angle. So this is called widening or splaying of the carina, and can be because of left atrial enlargement or heart enlargement. It can be because of other causes like hiatal hernia. What is hiatal hernia? Can somebody tell me what is hiatal hernia? There is an opening in the diaphragm. Diaphragm is the fibromuscular layer which separates the lungs, chest cavity and the abdominal cavity. What do you think about the second image in this case? Is carina is of normal angle or it is increased? Sir, increased angle, splaying of the angle. Displaying a widening it. Very good. Because of some pathology. So I was asking you, what is hiatal hernia? एक opening होती है in the diaphragm for the esophagus, जो chest से आ रहा होता है into the abdomen.
सो उस ओपनिंग से इसोफेगल ओपनिंग जो नॉर्मली होती है, कंजेनाइटली भी होता है, ये hiatal hernia acquired भी हो सकता है because of increase in intra-abdominal pressure, as can occur in case of obesity, pregnancy, coughing, and heavy weight lifting. So इसमें क्या होता है कि स्टमक जो है वो प्रोट्रूड इन कर जाता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द चेस्ट कैविटी. सो फिर आपको एक्सरे पे इसकी फाइंडिंग्स मिलती हैं. एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी कि नॉर्मली इसके अंदर गैस होती है और डेफिनेटली लिक्विड कंटेंट होता है. और गैस कैसे नजर आएगी हमें एक्सरे पे? हमेशा हाइपर ल्यूसेंट या रेडियो ल्यूसेंट. और आप इजीली देख सकती हैं कि देयर इज अ जस्ट इन द रेट्रोकार्डिक स्पेस, जस्ट जहाँ पे क्राइना का एंगल बन रहा है वहां पर आपको ये एक हाइपर ल्यूसेंट ब्लैक कह लें हम लफ्जों में, एक्सरे में इस्तेमाल भी कर सकती हैं आप ये ब्लैक लफ्ज. तो ये एक ब्लैक शेडो मिल रहा है. दिस इज द गैस विद इन द स्टमक कंटेंट. नॉर्मली इस एंगल पे नॉर्मली ऐसा कोई ब्लैक शेडो नहीं होता है. जस्ट हार्ट होता है, उसके चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वो हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे. बट इन दिस केस जस्ट below the carina you can see a hyperlucent radiolucent shadow, which is the gas in the stomach. And then the contents, liquid contents of the stomach will appear as radio opaque, and you will always see a gas to air fluid level within the stomach. And as a whole, this will be seen as a well-defined rounded mass behind the heart, that is retrocardial space. So this is an example of hiatal hernia. This will always appear below the carina. In this case, carina ka angle bhi widened ho gaya hai. In the second image, you can also see black or radiolucent stomach content, जो गैस है और एयर फ्लूइड लेवल है. इसमें भी देखें एज अ होल ये राउंडेड ओपेसिटी है और जिसके अंदर ब्लैक हाइपर ल्यूसेंट गैस है, एयर फ्लूइड लेवल है. लैटरल फिल्म हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एपी की थोड़ी सी डिस्कशन कर लें. लैटरल फिल्म पे भी ये नजर आता है फिर कंफर्म करने के लिए. और स्टमक बबल नॉर्मली आगे चल के हम देखेंगे इट इज जस्ट बीनीथ द लेफ्ट हेमी डायफ्राम. तो वो वहाँ पे ब्लैक शेडो के तौर पे नजर आता है, रेडियो लूसेंट नजर आता है. बट इस वाले केस में जब भी हियाटल हर्निया होगा तो एक और जो फाइंडिंग होगी एक्सरे पे, वो एब्सेंट स्टमक बबल बीनीथ द लेफ्ट हेमी डायफ्राम होगी. एयर ब्रोंकोग्राम्स, जब ये ट्रैकिया डिवाइड होता है राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में, तो उसके बाद जो है ये छोटी छोटी जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वगैरह, वो लंग्स टिश्यू में हमें नजर नहीं आती हैं बिकॉज लंग्स के पैरेन्काइमा यानी एल्वोलाई में भी एयर है और उनमें भी एयर है. जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो लंग्स के अंदर जा रहे हैं, तो जब दोनों में एयर है तो उनकी सेम डेंसिटी है. जब सेम डेंसिटी है तो देन you won't be able to see any small bronchi and bronchioles. But in cases जब कोई alveolar space disease हो यानी लंग के पैरेन्काइमा में, लाइक कोई फ्लूइड आ जाए, पल्मोनरी एडिमा, लाइक कोई पस आ जाए एज इन नमोनिया, कोई कैंसर सेल्स वगैरह हो, कोई ब्लड हो, किसी भी वजह से कोई ओपेसिटी हो जाए और ये ब्रोंकाई जो है पेटेंट हैं, इनमें एयर है, तो दे विल अपीयर एज रेडियोलूसेंट. और जबकि ये पैथोलॉजी जो मैंने भी आपको बताई ये लिवर पैरेन्काइमा में एज एन रेडियो ओपेक नजर आएंगी. सो वो फ्लूइड और एयर का कंट्रास्ट डेवलप हो जाएगा एंड देन विद इन दैट रेडियो ओपेक ओपेसिटी you will be able to see these structures which are called patent air bronchograms as tubular thin luminal structures within that opacity. ये बात समझ में आई आप लोगों को कि what is air bronchogram? Air bronchograms basically वो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो लिवर के पैरेन्काइमा में रन कर रहे होते हैं. नॉर्मली वो नजर नहीं आते हैं क्योंकि उनके अंदर भी एयर है और
लिवर के पेरेन्काइमल टिश्यू में जहाँ वो रन कर रहे हैं उसमें भी एयर है, सो सेम डेंसिटी है, तो इसलिए वो अलग से तो नजर आएंगे नहीं, जस्ट आपको रेडियोल्यूसेंट लंग्स का टिश्यू नजर आएगा। बट इफ कोई पैची कंसोलिडेशन हो गई है या होल लोब कंसोलिडेशन हो गई है ड्यू टू फ्लूइड और पस और कैंसर सेल्स या कोई भी ऐसी चीज जो एल्वुलर स्पेस डिजीज करती है वो डेवलप हो जाए, और ब्रोंकाई जो कि नमूनिया में पेटेंट रहते हैं, पल्मोनरी एडिमा में पेटेंट रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, एयर होगी उसके अंदर, और एयर जब ब्रोंकाई में मौजूद होगी दैट विल अपीयर एज रेडियो ओपेक while radiolucent and that will appear as thin luminal tubular structures running within that radio opaque mass. समझ में आया बेटा ये? जी सर। ओके, rest of the student किसी को अगर समझ नहीं आया तो he or she can raise hand. एयर ब्रोंकोग्राम्स क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये हमें बताता है कि लंग्स कंसोलिडेशन है ये रादर देन कोलैप्स इन द लंग। बेटा मैंने ये बताया कि नॉर्मली तो ये जो ब्रोंकाई होते हैं, मतलब राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस तक तो हमें नजर आता है, ट्रैकिया जहाँ बाइफरकेट हो रहा है, उसके बाद लंग्स टिश्यू में जब ये रन करते हैं तो वहां पे नजर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि लंग्स के टिश्यू के अंदर मींस एल्वोलाई के अंदर भी एयर है और इनके अंदर भी एयर है, तो दोनों बोथ विल अपीयर एज ब्लैक और रेडियोल्यूसेंट, सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन द डेंसिटी, सो यू कांट सी देम। बट किसी भी वजह से अगर लंग्स के एल्वोलाई या पेरेन्काइमल टिश्यू में कोई फ्लूइड आ जाए, कोई ब्लड आ जाए, कोई पस आ जाए, कोई सेल्स आ जाए, जिसकी वजह से कोई रेडियो पे एक मास डेवलप हो जाता है, तो फिर रेडियो पे एक मास डेवलप हो गया, बट ये तो पेटेंट है, ये कोई एल्वोलाई का डिजीज है, तो ये ब्रोंकाई तो पेटेंट है, वो फिर भी आपको नजर आने लगेंगे क्योंकि उनके अंदर एयर है, सो व्हाइट और ब्लैक का एक कंट्रास्ट डेवलप हो जाएगा, और फिर ये पेटेंट ब्रोंकाई जो है जो नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एयर ब्रोंकोग्राम्स, और ये बताते हैं कि ये कोई एल्वुलर स्पेस डिजीज है रादर देन कोई एटेलेक्टेसिस है, कोलैप्स है और या दूसरी कोई डिजीज है। So this helps us to diagnose or differentiate the different diseases. So you should know how the air bronchograms will look like. They appear as radiolucent, thin tubular structures with gas within them, running in the radiopaque mass of the lung tissue. कोई मीडियस्टल मास है उसमें ये नजर नहीं आएंगे, कोई एटिलेक्टेसिस है, कोई फ्लूइड फ्यूजन है, ये सब रेडियो ओपैक चीजें हैं, सो उसके अंदर ये आपको नजर नहीं आएंगे, जबकि सिर्फ कंसोलिडेशन में नजर आएंगे। Aortic knuckle is the part of arch of aorta where it is converted into descending aorta. ये arch of aorta है, aortic knuckle भी कहलाती है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट जब जा रहा है तो ये descending aorta है। So it is a part of arch of aorta where it is converted into descending aorta. It is posterior structure. If the border of the aortic knuckle is silhouetted, means obscured, the pathology is in the posterior mediastinum. Luftichial sign. It is a sign which appears in case of left upper lobe collapse. 50% of the patient with राइट लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स, मैंने यहाँ पे राइट अपर लोब कोलैप्स लिख दिया गलती से, ये लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स होगा। दिस विल हैव अ पोर्शन ऑफ द लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स, यानी लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स जब हो गया, लेफ्ट लोब जो लेफ्ट लंग के दो ही लोब्स होते हैं, राइट लंग के तीन होते हैं, अपर मिडिल और लोअर, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग में सिर्फ दो लोब्स होते हैं, एक अपर लोब और एक लोअर लोब। सो लेफ्ट अपर लोब का कोई कोलैप्स हो, सो क्या होता है कि ये लेफ्ट लोअर लोब का जो सुपीरियर पोर्शन है वो एंटीरियर सुपीरियरली इसके आ जाता है, और क्योंकि वो इस साइड पे एल्वुलर टिश्यू कम हो गया है तो एज ए कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी इट गेट्स हाइपर इन्फ्लेटेड। सो कभी भी आपको एओर्टिक आर्च के जस्ट पोस्टीरियरली, एओर्टिक आर्च के पोस्टीरियरली एक हाइपरल्यूसेंट हाइपर इन्फ्लेटेड ये क्रीसेंट शेप स्ट्रक्चर नजर आए, तो दिस इज टिपिकली showing a hyperinflated left lower lobe, and this will always appear posterior to the aortic arch, and this is called luftichial sign.
sign of left upper lung collapse. This will be seen in 50% of the cases. This is because the superior segment of the left lower lobe gets hyperinflated, क्योंकि वो एक compensatory hypertrophy के तौर पे उसमें ज़्यादा एयर आएगी और वो फिर आप सोचें कि ये लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स हो गया है, सो ये लेफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ द लंग विल गेट hyperinflated or as a compensatory phenomena, and then it will appear just posterior to the arch of aorta, and it will be seen as a black, more black, क्योंकि hyperinflated है, so ज़्यादा black होगा, ज़्यादा radiolucent होगा, and it will just appear on the posterior or lateral side of the aortic arch, and this is called luftichial sign. This is the sign of left upper lung collapse. So left upper lung collapse में क्या हुआ कि anterior portion जो है left lower lung का वो hyperinflated हो गया. बेटा म्यूट कर लिएगा, कोई सवाल है इसमें? ये एओर्टिक आर्च की पोस्टीरियरली आपको एक ज्यादा डार्कर या ज्यादा रेडियोलुसेंट पोर्शन ऑफ द लंग नजर आ रहा है. दिस इज indicating the superior aspect of the hyperinflated lung, and this is more black because it occurs as a result of compensatory phenomena. तो ये डॉक्टर तैयब है, समझ में आया? नहीं. सना खान, फिजा जी बेटा. सर, समझ आ गया. Yes, sir. अच्छा, Yes, डॉक्टर sir. मुमताज, मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये लुफ्टिशियल साइन भी है क्या. ये हाइपर इन्फ्लेटेड, जब चीज जितनी ज्यादा जिसमें एयर होगी उतना ही ज्यादा रेडियो लूसेंट होगा, यानी ज्यादा ब्लैक होगा. तो कभी भी 50% केसेस में, हमेशा तो नहीं, 100% केसेस में नहीं, जब कभी भी अपना राइट अपर लोब, राइट लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स होगा, सो ये लेफ्ट का लोअर लोब जो है वो ऊपर आ जाता है एंटीरियर सुपीरियरली, और वो ज्यादा इन्फ्लेटेड होता है क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ कंपनसेशन, और वो फिर हाइपर इन्फ्लेटेड जो है हाइपर ल्यूसेंट नजर आता है, और दैट विल अपीयर ऑन द posterior aspect of the aortic arch or lateral to the aortic arch, and this will appear. This is called luftichial sign. अपर ही अगर कोलैप्स होगा तो लोअर जो है वो हाइपर इन्फ्लेट ऊपर आ जाएगा, सिर्फ अपर ही कोलैप्स होगा. राइट, एग्जैक्टली. ऐसा नहीं हो सकता कि लुफ्टिशियल साइन आपको लेफ्ट लोअर लंग कोलैप्स में नजर आए. ये लेफ्ट अपर लंग्स कोलैप्स में ही नजर आ सकता है 50% केसेस में. And whenever you see this luftichial sign, this is highly indicative of left upper lobe collapse. यही सवाल था ना कि कहीं ये साइन आपको लेफ्ट लोब के जो लोअर पोर्शन के कोलैप्स से नजर आ सकता है या नहीं, यही सवाल था. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब अपर का कोलैप्स होगा तभी ये निशान नजर आएगा, लोअर उसकी लोअर की दफा नहीं नजर आएगा. नहीं, यही तो मैंने बताया, नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो इसलिए नजर आता है, वजह मैंने बताई ना कि ये जो पोर्शन है, ये आप सोचे कि ये पोर्शन कोलैप्स हो गया, ठीक है. ये कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट अपर लोब, ये कोलैप्स हो गया है. अब यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा है. अब ये जब कोलैप्स हो गया है तो ये जो सुपीरियर एस्पेक्ट है लेफ्ट लोअर लोब का, ये जब हाइपर इन्फ्लेटेड होता है एज ए रिजल्ट ऑफ कंपनसेटरी फिनोमेना, सो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, और इट विल बी सीन एज ए hyperlucent structure just to the lateral side of the aortic arch. But left lower lobe collapse में तो aortic arch यहाँ पर है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ये जो अपर लोब है लेफ्ट लंग का, ये कोई लुफ्टिशियल साइन बना देगा. आप अगर उसके पैथोफिजियोलॉजी में जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एरिया जब कोलैप्स होगा तो ये एरिया ऊपर आ जाएगा, बट अगर ये एरिया कोलैप्स हुआ तो ये नीचे नहीं आएगा. राइट? जी जी सर, थैंक यू. सर इस एक्सरे में राइट लंग में भी कोई पैथोलॉजी नजर आ रही है? राइट लंग में क्या है? जी फिजा बेटा, सवाल रिपीट कीजिएगा.
जी सर, ये जो एक्सरे है इसमें राइट लंग में भी कोई पैथोलॉजी है? और नहीं, आप शायद इसलिए सोच रही हैं कि शायद इट इज सीन एज मोर ब्लैक हाइपर लूसेंट है, इसलिए सोच रही हैं। यस सर। या इसको ओवर एक्सपोज किया हुआ है, ओवर एक्सपोज किया हुआ है। जबकि कंट्रास्ट देखना होता है रिपीट एक्सरे करके, इसको ओवर एक्सपोज किया हुआ है, बट देयर इज नो पैथोलॉजी विद इन दिस बिकॉज ये जो है इसके कंट्रास्ट को यानी अपर लोब के कोलैप्स को देखने के लिए उन्होंने इस तरह से किया हुआ। बट आप सही कह रही हैं कि ज्यादा हाइपरल्यूसेंट है, ज्यादा ब्लैक है, बट देयर इज नो पैथोलॉजी। एक ही हो सकती है न्यूमोथोरैक्स, बट उसकी फाइंडिंग इसमें और नहीं है, वो जो हम पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। So luteal sign, it will appear as hyperechoic or hyperinflated black tissue of the superior portion of the left lower lobe. It is seen just posterior to the aortic arch. तो जब aortic arch देख लो तो ये देख लें तो luteal